السلام علیکم. السلام. کون مولانا انیس صاحب؟ جی. کیا حال ہے مولانا صاحب؟ ٹھیک ہے؟ ہاں بڑھیا بڑھیا اللہ کرم ہے. او مولانا صاحب کیا ہوا تھا وہ کیا نام ہے کسی وہابی نے نماز جنازہ پڑھا دیا تھا اور نکاح ٹوٹ گیا، تو اس میں آپ نے بھی پڑھا بتایا نکاح. میں کسی وہابی نے نماز جنازہ پڑھا دیا تھا تو نکاح ٹوٹ گیا، اس میں آپ نے بھی پڑھا بتایا نکاح. صحیح بات ہے کیا ہے؟ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. اچھا، آواز نہیں آ رہی ہے؟ صاف نہیں آ رہی آواز، صاف نہیں آ رہی آپ. اچھا، آواز آ رہی ہے لیکن صاف نہیں آ رہی ہے. ہاں کون بول رہے ہیں آپ؟ میں صابر بھائی بول رہا ہوں، صابر بھائی. کہاں سے؟ میں کے ایس اے سے. کہاں سے؟ کے ایس اے. آپ کا نیٹ ورک کٹ رہا ہے، آواز صاف نہیں آ رہی آپ کی. آواز تو آ رہی ہے مولانا صاحب. آواز آپ کی کٹ رہی ہے حضرت. اچھا اچھا، ذرا مجھے یہ جاننا تھا کہ جیسے کیا نام ہے آپ نے بھی نکاح پڑھا بتایا کہ دوبارہ آپ نے بھی نکاح پڑھا ہے، یہ بات صحیح ہے کیا؟ نکاح پڑھا ہے؟ آپ نے جیسے کیا نام ہے وابی کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی ہے آپ نے، تو جو ہے کیا نام ہے سب کا نکاح ٹوٹ گیا، آپ کا بھی نکاح ٹوٹا ہے، آپ نے نکاح پڑھا بتایا دوبارہ. صحیح بات ہے کیا یہ؟ آپ ایک کام کریں، دوسرے فون سے لگائیں، اس میں آپ کی آواز کٹ رہی ہے، صاف نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، میں دوسرے نمبر سے دوسرے فون لگاتا ہوں. لگائیں. دوسرے نمبر سے لگاتا ہوں، ہے نا؟ ہاں ہاں. مولانا صاحب سمجھ رہے ہیں لیکن جو ہے بول رہے آواز نہیں آ رہا ہے. چلو خیر کوئی بات نہیں، دوبارہ لگاتا ہوں میں. ابھی دیکھیں کیا بولتے ہیں مولانا صاحب. Have 121 minutes 59 seconds remaining. کیا بات ہے مولانا صاحب کدھر ہے؟ کوئی ہاں نہ کچھ بھی نہیں ہے. چلو پھر لگاتا ہوں دوبارہ سے. You have 121 minutes 59 seconds remaining. مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے. ہلو. ہاں مولانا صاحب آ رہی ہے آواز ابھی؟ ہاں ذرا بتائیے اس کے بارے میں. کہاں بول رہے ہیں آپ؟ میرا نام صابر انصاری ہے اور میں سعودی عربیہ سے بول رہا ہوں. اچھا. ہاں تو ذرا. جو اہل حدیث یا دیوبند جو ہیں، ہوں جو بھی فرقے ہیں، ہوں اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہوں جو ہے مسئلہ یہ ہے ہوں. کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح دونوں کرے گا. اچھا، تجدید نکاح تجدید ایمان دونوں کرے گا، یعنی اگر جس نے کسی وابی کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ لیا تو ہاں. جی. تو یعنی نماز جنازہ سے جو ہے کیا نام ہے نکاح کا کیا تعلق ہے، ذرا یہ بتائیں گے تھوڑا میرے کو. ایمان سے ہے کیونکہ نا، ایمان سے. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سعودی عربیہ میں ہیں ہے نا، تو ہم لوگ بھی جو ہے ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. کیا جیسے عام نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کا نکاح ٹوٹا ہے تو ہم لوگوں کا بھی ٹوٹے گا. اور جو دوسری بات جیسے کہ جیسے حاجی لوگ آتے ہیں حج کرنے، ہے نا، حج کرنے آتے ہیں تو جو ہے کیا نام ہے وہ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ان کا نکاح بھی ٹوٹے گا، ہے نا. تو ذرا اس کے بارے میں میرے کو بتائیے تھوڑا. تجدید ایمان جب ایمان گیا تو
निकाह भी गया ना, अच्छा तो वहाँ जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मौलाना साहब, जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी निकाह टूट गया है ना, फिर वो अगर इंसान निकाह नहीं करता है और वो बीवी उसी के साथ रहती है और बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो बच्चा क्या कहलाएगा फिर? ऐसा है कि देखो, इतना आप जो मुफ्ती नहीं करा उसका रास्ता करें तो वो इसका क्या हाल बताते हैं। नहीं नहीं, ठीक है ना, जैसे जैसे इतना बड़ा जैसे निकाह, मालिक जैसे निकाह तो आप टूट गया है ना, जैसे निकाह टूट गया, अगर वो इंसान निकाह नहीं कर रहा है दोबारा और जो है क्या नाम है बीवी अरे उसके साथ अरे रह रही है ना, तो फिर जो है जैसे नहीं कोई तो बच्चा हो गया, नहीं, बोलो बोलो बोलो, आप बोलो, कोई बात नहीं। आप जो है ईमान की आप बात ही नहीं कर रहे हैं। पहले तो ईमान गया ना, निकाह तो बाद में है, तो आपको ईमान की फिक्र ही नहीं हो रही है, आपको निकाह की फिक्र हो रही है। नहीं नहीं, मैं तो मसला पूछ रहा हूँ मौलाना साहब आपसे। अभी अभी ईमान, ईमान ईमान के बारे में, तो ईमान के बारे में मैं आपसे बाद में पूछूंगा, पहले मैं मसला पूछ रहा हूँ कि जैसे मसलन हम लोग भी जो है क्या नाम है यहाँ पर है सऊदी अरब के अंदर, तो हम लोग भी इनके नीचे इनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, नमाज जनाजा भी पढ़ते हैं है ना, और कितने लोग हज करने आते हैं तो वो भी जो है क्या नाम है इनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, नमाज जनाजा भी पढ़ते हैं। तो जो है जैसे वो तो दोबारा निकाह नहीं करते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं छुट्टी तो हम लोग तो दोबारा निकाह नहीं करते हैं, और जैसे हाजी लोग भी जाते हैं तो दोबारा निकाह नहीं करते हैं। फिर जो है जैसे अगर दोबारा निकाह नहीं किए वो लोग, तो फिर जो है उनके औलाद होगी तो वो क्या कहलाएगी फिर? मुझे थोड़ा जानना है, मैं कन्फ्यूजन में हूँ। तो कंफ्यूजन में होता है, काम करें आप किसी मुफ्ती कराम से राब्ता करें, वो आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। अच्छा अच्छा, यानी आपको मालूम नहीं है मसले के बारे में? हाँ। मसला 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 यही है कि हम्म, तस्दीद ईमान तस्दीद निकाह दोनों, अब वो क्या होगा क्या नहीं होगा आपको हम्म। मुफ्ती कराम से पूछना। अच्छा अच्छा, जैसे क्या नाम है, जैसे अभी आपने कहा है कि तजदीद निकाह तजदीद ईमान है ना, तो जैसे क्या नाम है अगर कोई इंसान जैसे ये वहाबियों के पीछे नमाज पढ़ लेता है तो उसका ईमान चला जाता है क्या? ईमान तो जाएगा ना। तो ईमान के रुकन कितने हैं मौलाना साहब, जरा बताएंगे थोड़ा? अरे हजरत आप इम्तिहान दे रहे हैं या पूछ रहे हैं। अरे हजरत आपका तो बहुत नाम सुना है मैंने, आप मौलाना साहब है माशाल्लाह, और जो है आप आलिम भी है ना, और आपने निकाह भी पढ़ा है अरे फिर दोबारा, तो जरा हम लोगों को भी तो जानना है ना, क्योंकि अरे हम वो लोग भी इनके पीछे क्या नमाज पढ़ते हैं, तो अरे नमाज पढ़ते तो जाहिर सी बात है फिर हम लोगों को भी निकाह पढ़ना पड़ेगा। तो जरा मुझे ये बता दीजिए ईमान के काम रुकन करें कितने हैं? माशाल्लाह आप आलिम हो, जरा इतना सा तो जानते होंगे ना आप कि इस्लाम के रुकन कितने हैं, ईमान के रुकन कितने हैं, हाँ। जरा बताइए थोड़ा। तो एक काम कीजिए, आप यहाँ मस्जिद तशरीफ लाइएगा, आपको ईमान के रूप में सारे बताता हूँ मैं आपको। यानी आपको मालूम नहीं है ईमान के रुकन कितने हैं, और आप मुसलमान हो और आप आलिम भी अरे हो? मैं कह रहा हूँ आप यहाँ तशरीफ लाइए ना, आपको आप ये तशरीफ तक लाइए, पता नहीं आपको है, आपको ये तक पता नहीं है ईमान के रुकन कितना है, इस्लाम के रुकन कितने हैं, और आप आलिम हो? आपको आलिम अरे किसने वो बनाया? छोड़ो, आप उसकी आपको बहस करनी है, क्या करना है मेरे को ये बताओ आपको आप। आलिम किसने बनाया? आप तो मुसलमान भी नहीं हो, जिसको ये तक मालूम नहीं है कि इस्लाम के रुकन कितने हैं, ईमान के रुकन कितने हैं, वो अपने आप को मुसलमान बोल रहा है और आलिम भी बोल रहा है। मेरे को चलो कुछ भी मालूम नहीं है, आपको मालूम है क्या। तो आप आलिम कैसे बने फिर? आपको कुछ मालूम नहीं है तो? मैं क्या कह रहा हूँ, आपके कॉल के मुताबिक मुझे कुछ भी नहीं आता, इसका आप मतलब ये है आप जो है अपने ठीक है ना। मुफ्ती के पीछे आग बंद करके चल रहे हो। जो मैंने मसला पूछा है आपको उस मसले के बारे में मालूम नहीं है, आपने बोला है मेरे को कि तजदीद निकाह तजदीद ईमान, तो मैंने आपसे पूछा है ईमान का रुकन कितना है, वो तक आपको पता नहीं है और आप मेरे को दावत दे रहे हो। है? हाँ, तो आप मतलब इम्तिहान आप इम्तिहान ले रहे हैं या मतलब पूछ रहे हैं। मैं तो दोनों ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि आजकल कोई भी लोग आग बंद करके बात नहीं मानते ना किसी की, कम से कम उसकी दलील तो चाहिए ना। दोनों हाथों से आपको मिलेगी, यहाँ हो ना। भाई दलील तो चाहिए ना। आप खुद ही तो आए, आपको दलील अब मैं इस्लाम के रुकन पूछने और ईमान के रुकन पूछने में सऊदी अरब से वहां आपके बीकानेर में आऊं इतना सा मसला पूछने? अच्छा आप सऊदी से कॉल कर रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो, खुदा का कौन। यानी आप माशाल्लाह आलिम है और आपका आपका निकाह भी टूटा है और आपने निकाह भी पढ़ा है। अच्छा मौलाना साहब, जैसे निकाह तो पढ़ लिया तो वलीमा वगैरह किया नहीं किया आपने? अरे झूठ, पहले तो ये बताओ ना, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन,
आमीन 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 आमीन। सऊदी से बोल रहे हो तुम? हाँ सऊदी से, सऊदी से बोल रहे हो? हाँ सऊदी अरबिया से बोल रहा हूँ मैं। साबिर अंसारी मेरा नाम है। हाँ? मेरा ये नाम सऊदी का नंबर है? मेरा नाम साबिर अंसारी है और मैं सऊदी अरबिया से बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे बताइए ये ये कि जैसे अभी आपका निकाह टूटा है और आपने निकाह भी पढ़ा, अब नंबर किधर का है किधर का नहीं है मेरे को मालूम नहीं, अभी कौन सा नंबर आपके पास आ रहा है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे आप आलिम भी हो और आपने निकाह भी पढ़ा है, निकाह पढ़ा है, तो क्या नाम है, वलीमा वगैरह किया नहीं किया आपने? आपको सब बताऊंगा ना, आप यहाँ आइए। अरे मौलाना साहब, इतना सा मसला पूछने में वहां पर आऊंगा क्या? आप माशाअल्लाह आलिम हो, हाँ, तो अब इतना सा मसला पूछने में वहां पर आऊंगा? जरा हमको भी बताओ भाई, हमको भी बताओ। हेलो 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 कर लिया आलिम साहब। भाई हम भी सऊदी अरब में रह रहे हैं, क्या हमारा निगाह टूटा है नहीं टूटा भाई, हमको भी जानना है ना। आलिम साहब निकल लिए कॉल कर करके। Have 112 minutes, 59 seconds remaining. नविदा है दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की मौलाना साहब भी कॉल नहीं दुआओं का उठाएंगे, सिला है। क्लास निकल ले मौलाना साहब। ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿರುವ ऐसे मौलाना साहब निकल लिए खलास, अभी कॉल नहीं उठाएंगे। ये हाल इन बरेली उल्लमाओं का। ये बीकानेर के अंदर जो है एक अहले हदीस ने नमाज जनाजा पढ़ाया, तो बरेली मुफ्ती ने यह फतवा दिया कि जिसने नमाज जनाजा पढ़ा उनकी सबकी निकाह टूट गई। तो ये आलिम साहब भी उनमें नमाज जनाजा पढ़ने में शरीक थे, तो इनका भी निकाह टूटा है। तो जब मैं इनसे मसला पूछ रहा हूँ तो ये मसले का जवाब नहीं दे रहे मेरे को, इधर से उधर, और फतवा भी दे रहे हैं कि जिसने वाबी के पीछे नमाज पढ़ी उसको जो है क्या नाम है, उसका ईमान भी चला गया, तो उसको जो है तजदीद निकाह तजदीद ईमान जो है पढ़ना है। तो मैं इनको पूछा, मैंने कहा ईमान के रुकन कितने हैं? ये इतने बड़े आलिम हैं, इनको ये तक पता नहीं है कि ईमान के रुकन कितने हैं। क्या तो ईमान के जब रुकन पता नहीं, ईमान के बारे में पता नहीं है, तो कैसे ये बोल रहे हैं कि ये क्या नाम है तजदीद ईमान, कैसे बोल रहे हैं ये? अभी इनको खुद को ही पता नहीं है। बहरहाल फिर कॉल करता हूँ मैं इनको। You have 112 minutes, 59 seconds remaining. क्या बात है भाई, कुछ हलचल नहीं है। दोबारा फिर मारता हूँ अल्लामा साहब को। You have 112 minutes, 59 seconds remaining. क्या बात है भाई, कुछ जवाब नहीं आ रहा है। मौलाना साहब मोबाइल बंद करके सो गए क्या? ये हाल है इन बरेली उल्लमाओं का। अल्लाह खैर करे, अल्लाह बचाए इनसे। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है सब कुछ ये मेरी अरे उल्लमा साहब कॉल उठाओ। कट हो गया नहीं उठाया।